Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, Dr. Shakir, and good evening, all participants. How's everyone? Participant, you can interact with our director, ma'am. She's with us. You can continue the interaction, Dr. Shakir. It's good that you're building a rapport with them. So I will talk to them. We will see when Professor Vashishtha is here, and we can begin with the formal inaugural. Yes, ma'am. Vashish sir hasn't joined yet, ma'am. I think. Call kar de, ma'am, if you. Just check, huh? Okay, ma'am. Normally he does join on time. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have 28 participants. Sir has come. Yes, ma'am. Vashish sir has come, ma'am. So. जी आदाब प्रोफेसर आदाब सर. जी ठीक है सर आप बिल्कुल मैडम थैंक यू वेरी मच बढ़िया ये मोस्ट वेलकम हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं वर्चुअली ही सही बहुत ही अच्छा लगता है अगर हमें मौका होगा हम आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे फिजिकली अलीगढ़ Definitely, madam. Aligarh University and Aligarh city is very dear to my heart. कई कारणों से. So, सर ये आज आपका इनॉग्रल लेक्चर होगा डॉक्टर शाकिर हमारे कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं आपका तारुफ कराएंगे और इससे मुझे उम्मीद है कि हमारा पूरा कोर्स बहुत अच्छा बीतेगा. Should we start, ma'am? Yes, Dr. Okay. So, as participants, you can see we have with us a very renowned teacher educationist, Professor Umesh Vashish sir, and our very dynamic director of UGC HRDC MMTTC now, Dr. Faiza Abbasi madam. Without delay, I would like to invite Faiza ma'am to throw light on the objectives of this program and why we are here. Ma'am, please. Yes, ma'am. Okay, thank you, Dr. Shakir, for this invitation. And I once again welcome our very eminent resource person and our speaker for the inaugural session, Professor U.C. Vashishtha, who's here. He will be speaking to you on themes related to the national education policy. So I can see all the participants who have joined us from across the country, that too in the afternoon. I must say they must be having some enthusiasm to learn about the national education policy and to orient the aims and objectives of the higher education mission of our country to the mission of the NEP. So as you know, there are various themes that have been defined under NEP and which are all aimed with the objective of giving a new dimension with a new realization to the educational philosophy of this country, this ancient country of the Nalanda and Takshila tradition, that the new education policy was introduced. However, there were a lot of apprehensions about whether this will be well implemented, well executed, whether this is practical enough or not. But realizing that it is the teachers who will play the key role in implementing the policy and in accruing the benefits of the policy to the nation, it was decided that the teachers be oriented to the objectives and the aims of this policy. So as you know, our themes are holistic education, multidisciplinary education, Indian knowledge system, student diversity, inclusive education, ICT above all, research and development. So this is a very, very holistic curriculum that has been developed for you in the coming 8 days. All of us here
team, UGC, MMTTC, Aligarh Muslim University are deeply committed to dishing out this course to you in the easiest, simplest, and the most comfortable of the terms. And that's how the able selection of resource persons is done by your coordinator, Dr. Shakir. And we have a team of coordinators out there at the education department. And participants, you have to do it in the evening. I know you must have all had a busy day since morning. This is going to keep you again busy up to 7 p.m. every day. But I want to request you to be present in all the sessions. And I also want to request you to be punctual, because as you just saw, our resource person was dot on time, and most of our resource persons will be dot on time. So in their respect, in their honor, I will request all of you to log in at least 5 minutes before the class starts. You will have a 15 minutes break every day. Please have tea. अगर आप हमारे साथ होते यहाँ होते तो हम, लेकिन आप हमारे साथ नहीं है जहाँ कहीं भी है, समय का आप सदुपयोग करें. Come back again to the class with a fresh mind. You have only 2 sessions per day. All our sessions are live. Our technical team will be present here. If there is any technical outage, we will try our best. So I want to say that in this course, you will be getting grades for A plus, A, B, C, D, level. I wish that you all go out from here with good grades. Is that you have to give one MCQ today, which is the first day of the course. That will be at the end of the second session. The second session is with actually. He will be joining you from midnight. It will be 5 o'clock in the morning for him there, but then he wants to speak to you. So participants, please appear for the MCQ today and then appear for the last MCQ. At all, even Dr. Shakir has said that to you. Please allow me to reiterate and re-emphasize that there is certain technical decorum which we expect from our participants. We want you all to the classroom at all given points. We want you all to be present in classroom with your videos on. It is very encouraging. Sometimes we are also speakers. It is very encouraging to see that the videos are on, that there is eye contact, there is some response. अगर कोई अपना सर हिला रहा है, रिसोर्स पर्सन ने कोई मजाक की बात कही तो कोई हंसा, ये चीजें पता चलती हैं तो जरा हमें बोलने वालों को अच्छा लगता है. I'm sure as teachers you agree with me, and I'm sure वशिष्ठा साहब जो हमारे साथ मौजूद है वो भी मेरे साथ इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि जब हम एक दूसरे से रूबरू कोई गुफ्तगू करते हैं तो वो गुफ्तगू ज्यादा जिंदा और जावेद लगती है. I think it seems more lively, it seems more vibrant. तो यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको इसकी इजाजत देता है तो आप प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखें. जैसे अगर आपसे सवाल किए जाते हैं आप जवाब दें, लेकिन अगर आपको कोई सवाल करना है तो बीच में खुद को अनम्यूट करके, जो हमारा एक तसलसल है लेक्चर का, एक तारतम्य होता है ना संवाद का, उसे तोड़े ना. मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अगर कोई सवाल करना है तो आप अपना हाथ उठाएं. आपका डिजिटल हैंड आपकी स्क्रीन पे नीचे बाईं तरफ से तीसरा बटन है, हाथ का. जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्लीज. हाँ यस. आप सिर्फ अपना ये हमने इन्हें म्यूट किया, हमारी टेक्निकल टीम आपको म्यूट करती रहेगी अगर बीच बीच में आप अनम्यूट हो जाते हैं. एक बटन है प्रेजेंट नाउ का. आपको किसी भी समय लेक्चर में प्रेजेंट नाउ का बटन नहीं दबाना है. अगर आप ऐसा करते हैं तो रिसोर्स पर्सन की स्क्रीन रिप्लेस हो जाएगी आपकी स्क्रीन से. अगर आप प्रेजेंट नाउ का बटन दबा के जा चुके हैं ये सोचकर कि इससे आपकी अटेंडेंस लग रही है,
हम आपको 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा पुकारेंगे कि आप प्रेजेंट नाउ का बटन ना दबाएं। अगर आप वहां मौजूद नहीं है हमारी बात सुनने के लिए, तो मैं माफी के साथ आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि फिर बाकी सब लोग भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। यूजीसी, एमएमटीटीसी, एएमयू को बहुत खुशी है कि आज आप सब हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अगले 8 दिनों तक आप जुड़े रहेंगे। मुझे इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि एक बहुत अजीम शख्सियत के साथ आज आपका तारुफ हो रहा है, और इसी के साथ हम इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है डॉक्टर शाकिर से, वो आपके सामने एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे हमारे आज के रिसोर्स पर्सन का। मैं एक दफा फिर बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहती हूँ प्रोफेसर वशिष्ठा का, और मैं एक दफा फिर आप सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी हमारे कोर्स के प्रतिभागी हैं उन सबका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अगले 8 दिनों में जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी यहाँ से लेकर जाएंगे, वो आइंदा हमारी जिंदगियों को और बेहतर बनाने में काम आएगा। और एक कोट है, अ टीचर नेवर डजंट नो वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स, द इन्फ्लुएंस माइट गो अप टू एटर्निटी। तो मेरी ये शुभकामना आपके साथ है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए जुड़े हैं। May your influence as a teacher also go up to eternity. Thank you so much, प्रोफेसर रशीद साहब। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे कोर्सेज में हमेशा आपकी मौजूदगी से चांद चांद लगते रहते हैं। डॉक्टर शाकिर, आपका तारुफ पेश करें। Thank you, ma'am. Participants, one thing I would like to say about our MMTTC, that you have enrolled yourself in one of the best MMTTCs of our country. We are at, I think we have just missed first spot by few, points. We were at second. So you are, and first session is taken by Umesh Vashistha. It's a guarantee that our program will be a success, will be a great success. And the second one is of Professor Ved Prakash. Having these two great personalities on day one, it speaks volume about the rank of our HRDC or MMTTC, or the value of our HRDC in the eyes of these stalwarts. These two persons are the great personalities of our country. So Umesh Vashistha, thank you once again, and participant, thank you all of you that you have joined us. So as ma'am has directed me to introduce Professor Umesh Vashistha, although Professor Umesh Vashistha sir does not need any introduction. He is a very well-known personality in India. Sir, but as per tradition, I have to do this task. Participants, this is for you. You must know your resource person so that you can understand that how you can understand the dedication and hard work of our director, ma'am, that she has successfully brought in two good resource persons in this session. Professor Vashistha sir has retired from, he has worked in University of Lucknow. He has worked as chairperson in the Department of Education from 2000 to 2004. Sir has worked as a Dean Faculty of Education in University of Lucknow. Sir has MSc Botany, MA Philosophy, and Sir is MAd and MPhil and PhD in Education. His specializations are in philosophy, Indian philosophy of education, teaching of science and biology, rural development, curriculum development, higher education, school education management, and Sarvodaya philosophy. Sir has been the active member of Executive Council, Academic Council, and is associated with the Center for Vivekananda as director. He was associated with Center for Gandhian Thought also. He is still the member of many universities. He is member of Board of Studies of IGNOU, New Delhi. Sir was the member of BOS Vishwa Bharati Shantiniketan University. Sir has been involved in other universities like University of Delhi, University of Mumbai, Vanasthali Vidyapeeth University, Rajasthan Vidyapeeth University, Goa University, MS University Baroda, Kota Open University, Barkatullah University Bhopal, and of course he is regularly visiting Aligarh Muslim University. As you can see, he is with us today for the session. Sir has also been the member of NAC evaluation team, NCT evaluation panels,
And sir has also shared his expertise with national bodies like MHRD, NUPA, NCERT, University Grants Commission of India, UPSC, ICSSR, etc. And one of the special qualities of sir is that apart from these academics, he is associated with the he has contributed in development of more than 40 films as a script or writer, editor, translator. And sir has also supervised more than 25 PhDs. So he's having silver jubilee in PhDs. So and sir has also published a good number of papers in various reputed national and international journals. Sir has also presented papers in various national seminars and international seminars. Sir has been awarded by Government of Uttar Pradesh, Government of UP, Shikshak Shri Samman. We are very fortunate sir is here with us. And sir, whenever an award is given to you, it's a award to award, sir. आप award को award देना है, sir. Thank you once again, sir, and credit having you here, sir. आपका होना ही guarantee है कि हमारा program successful होगा. And for this, I would like to congratulate to our director, ma'am. Ma'am, आपको मुबारकबाद, ma'am. क्योंकि आपके दोनों जो मैम रिसोर्स पर्सन है, फर्स्ट टू दे आर आई मीन स्टॉलवर्ड्स ऑफ दिस कंट्री, मैम. थैंक यू वेरी मच, मैम, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन टू कोऑर्डिनेट दिस प्रोग्राम. So participant, now I will not be between you and the sir. Now, sir, you can start your session on IKS, sir. Thank you, Dr. Muhammad Shakir ji. As I have said, I always feel honored to be associated with a wonderful university like AMU. As I said, it is dear to my heart for many reasons. One academic reason is I never found a C grade PhD thesis from AMU. It was either outstanding or above average. Friends, the topic given to me is Indian knowledge system and integrating indigenous knowledge into the teacher education curriculum. Before I start, I'd like to make few, I'll not say conditions, few requests. One of them is language. I'll be speaking in the kind of a mixed language. Is there someone who just cannot understand Hindi? Because I'll be referring to Hindi and Hindi terms, Sanskrit and the Sanskrit terms. Is there someone who just cannot understand Hindi? He or she should unmute and tell me, number one. It seems nobody. Good. That makes my task all the more easy. Second thing is, friends, by and large, I'm not very much in favor of the online mode. The problem, one issue raised by Professor Abbasi. It's not possible, in fact, both and Hindi and English, fine, absolutely okay. One problem with the online mode is that I cannot see all of your faces. I cannot understand to what extent I have been able to communicate my things to you. We are not in a face-to-face mode. And therefore, as a remedial measure, we generally decide that the last 10-15 minutes, we will be devoting to question-answer session. That's one. However, if you feel that your question is very intelligent, very urgent, you can push the button, raise hand, and ask the question, no issue. Second, another problem is, which Professor Abbasi said, most of you are, in spite of her request, you have not put your video on. So I'll request you, friends, all of you, to please put your audio off and video on, please. All of you, may I make the request? Yes, kar diya, sir. Video on and audio off. And in fact, this thing I'll be repeating 4 or 5 times in between also. One more thing is, it's a personal thing. Personally, I do not appreciate your thank you, very good morning, very good evening things. I do not appreciate that. Just concentrate on the topic. Just concentrate on the
video and the content and react to it whenever time arises. Similarly, I do not appreciate when you blow the flowers and the yellow color flowers thing. Please avoid that if it is possible. Let us concentrate on the academic issues and the topic of the day. One more thing before I delve deep into Indian knowledge system, I'll talk a bit about new education policy. Friends, in the most brief manner, I'll say that after 1947, either a major paradigmatic change was brought by 1968 कोठारी कमीशन, बहुत बड़ा बदलाव था, हम लोग इसको बाइबल सा मानते हैं, और या फिर एक इससे भी बड़ा बदलाव 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आया है. 2020 new education policy is the rarest of rare document in Indian history of education. This document, the beauty is, on one hand, it combines the ancient wisdom. On the other hand, it takes into cognizance the modern technological, cybernetic changes like artificial intelligence, machine learning, and all. So, in fact, this document was, went unopposed in Indian Parliament. Nobody opposed it. Of course, there may be issues regarding full implementation in the spirit and letter and spirit. But the quality of this document is simply marvelous. Therefore, I will recommend you, if you are really interested in improving your teaching, improving your understanding of your subject, improving your understanding of your department, improving your understanding of your college, and improving your understanding of the university, and improving your understanding of the teaching learning process, along with improving your teaching capability and teaching empowerment. This is a rare document you should go through. It's a hardly 100-page document. Please go through it word by word from page 1 to the last. This document helps, it can help us, empower us as a teacher. Now I come to Indian knowledge system. भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुत ही कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता. The God is endless. Similarly, his gatha or the tales are also endless. Hari Ananta Kathata. Ananta Katha. Bharat Bhumi, we are proud. In fact, Aligarh is part of UP. In UP, there is a city which is known as the oldest living city of the world, Varanasi, oldest living city. We have heard about this city in Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug, and now Kali Yug. In all yugas and all time immemorial, Aligarh city, Varanasi city occupies a pivotal position at the global level. Our history, in fact, earlier I used to think that Bal Gangadhar Tilak was merely a politician. Later on, I came to know that he was a teacher and a manager of a famous Deccan College, Pune. And of late, I realized that he was a great scholar. He was a great scholar of history. He was a great scholar of astronomy and astrophysics, kind of. He made a reverse counting, reverse calculation. He tried to understand the celestial position of Vedas. In Vedas, the celestial position which have been described, he made a reverse calculation from the present to the past. Later on, many international experts, they agreed that his method and calculation are correct. And whatever he says
is proved by some more evidences, and it was that the ancient Indian culture was at least 10,000 years back from now. I'm a student of biology. In MSc Botany, we were made to learn that wheat crop is at least 10,000 years old. Chaw or barley is a crop which is older than wheat. In Vedas, we get many references to the barley crop and less reference to wheat crop, which is again a proof that Indian culture is at least 10,000 years old. The Vedas are at least 10,000 years old. I'll come to that later on. The first one I would say, India has got its geographic boundaries. It has got magnificent past. हमारा प्राचीन और गौरवशाली इतिहास है. हमारा बाय एंड लार्ज हम हिस्ट्री ओरिएंटेड लोग हैं. अक्सर आपने घरों में भी पाया होगा, आपके बाबा दादा कहते थे हमारे टाइम में हम ऐसा करते थे, हमारे टाइम में ऐसा होता था. इंडिया चूंकि सबसे पुरानी, प्राचीन और गौरवशाली इतिहास भारत का, इसलिए भारत में पुरानी बातों का रेफरेंस देना एक बहुत आम बात हो गई है. We have coupled religion and spirituality in a great way. Indian man, they say, by and large, it is man divine. There are two types of human beings as per philosophy, man demonic and man divine. दानव और दैत्य, मानव परंपरा. Western philosophy says, Christian philosophy says, for example, that man committed a sin. From heaven, he was brought to earth because the Adam and the Eve, they committed a sin. And therefore, for repenting, as a repentance, we should do good deeds. Indian thought says that no, aham brahmasmi, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ. मैं बेसिकली अच्छा आदमी हूँ, बेसिकली डिवाइन हूँ, आई एम बेसिकली डिवाइन, आई एम बेसिकली a good man, and therefore I should do good deeds because I am basically a good man. So that typical change of ideology, difference of ideology, the nature of man is man divine. Indian mind, if we say the Indian mentality, we are fatalistic by nature. जापान से एक बहुत बड़े पत्रकार भारत आए थे 60s में. उन्होंने कहा कि यहाँ का तो भिखारी भी फिलॉसफी झाड़ता है. भिखारी भी कहता है मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे जन्म में से लिखे हुए होंगे, पुराने जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसलिए ऐसा है. और इसलिए वो बार बार कहता है कि मैं अब अच्छे कर्म करूंगा, अब अच्छा वो करूंगा तो आगे चल के सुधर जाएगा मेरा जन्म. वी आर हॉस्पिटेबल बाय नेचर. जेबीएस हेल्डेन अपनी किताब में कहते हैं कि इंडिया की दोपहरी में, मई जून में आप कार में जा रहे हैं और आपके कार के रेडिएटर में पानी कम हो गया है, तो न केवल आपको पानी मिलेगा, आपके कार के रेडिएटर को पानी मिलेगा, आपको भी पानी मिलेगा, आपको भी खाना मिलेगा, और वो आपसे कहेंगे कि आप रुक के आराम करके ठंड में पेड़ के नीचे लेटिए, आराम करके फिर जाइएगा. वी आर टॉलरेंट. दुख भरे दिन बीते रे भैया. We are always, we in fact tolerate the miseries of life so easily. Say we regard them as just part of life. We are philosophic by nature, as I said. We are non-materialistic by nature. Almost in every city of India, आप लोग कोई ना कोई आदमी ऐसा पाएंगे जो कहेंगे कि ये आदमी जब आया था तो लोटा डोर लेकर आया था. मदन मोहन ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? मदन मोहन ब्रह्मा जी प्लीज. एक तो आपने वीडियो ऑन नहीं किया है, दूसरी ओर से ऑडियो ऑन कर रखा है. ये दो गलती आप कर रहे हैं. प्लीज डोंट डू इट. उन्होंने सुना ही नहीं होगा, ये बड़ी दिक्कत है. एक्चुअली क्या है कि जैसे आप में से ज्यादातर लोग ऑडियो भी ऑफ कर देते हैं, वीडियो भी ऑफ कर लेते हैं और चैन की मुद्रा में आ जाते हैं, जो भी अच्छी बात नहीं है. डॉक्टर कंचन जैन जी कुछ कहना चाहती हैं.
एंड सूर्य कुमार जी डोले जी। कंचन जी कुछ कहना चाहती हैं? डॉक्टर कंचन जैन प्लीज, यू हैव रेज्ड द हैंड। डॉक्टर सूर्य कुमार जी डोले जी, बोलिए मैडम। आपका ऑडियो भी ऑफ हो गया। सूर्य कुमार जी, ओके, नहीं गलती से हो गया होगा, अक्सर ऐसी गलती हम बार बार करेंगे। खैर, हम अक्सर हमारे उसमें कहते हैं हर शहर में कोई ना कोई का कि जब ये गांव में आया था अपने यहाँ शहर में आया था तो लोटा डोर लेके आया था, अब बड़ा हो गया है तो। मदन मोहन जी, Excuse me, sir, I'm not getting the voice. मदन मोहन जी, इको होती है इसलिए आवाज नहीं आ पाती, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑडियो ऑन कर देते हैं। ओके, हमारी अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी है। कल्चर की दृष्टि से हम कहते हैं कि व्हाट इज इंडियन कल्चर? इट इज एग्रीकल्चर। हम अक्सर सबसे पहला सेंटेंस कहीं भी पढ़ते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की 70% जनता कृषि पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से निर्भर है। हमारी अपनी डेमोग्राफी है, अभी हमने दुनिया में कूद लिया है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। वी आर द टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन अब विश्व में सबसे ज्यादा है। हमारी नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, प्रोग्रेस है, इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन है। आज कोई भी अध्यापक धोती कुर्ता पहनते हुए नहीं मिलेगा। आज से 30 साल पहले अध्यापक का मतलब ही धोती कुर्ता, मेल अध्यापक का मतलब ही धोती कुर्ते वाला अध्यापक माना जाता था। द पैराडाइम्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। आज भी गांवों में भी पैंट और कमीज ने बहुत बड़ा घर कर लिया है वेस्टर्नाइजेशन से। क्लाइमेट वाइज हम कहें, दुनिया का रेयरेस्ट कंट्रीज में से एक है इंडिया। फाइटोजियोग्राफी एंड जूजियोग्राफी, एक बड़ा रेयर चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया वर्ल्ड के उन रेयर कंट्रीज में से है जहां +50 डिग्री टेम्परेचर और -50 डिग्री टेम्परेचर एक बार में ही होता है। आजकल मई जून चल रहा है, इंडिया के कुछ सिटीज में 50 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक इसी तरह में से कारगिल या लेह से और ऊपर जाकर -50 डिग्री का टेम्परेचर है। इस वजह से हाईएस्ट फ्लोरा और फौना, फाइटोजियोग्राफी एंड जूजियोग्राफी, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु दुनिया के भारत में पाए जाते हैं। वी कैन क्लेम द रिचेस्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द वर्ल्ड। थिंकर्स की यदि हम बात करें तो दुनिया के काफी बड़े चिंतकों में मेरा ये दूसरा वो आ गया है, यस, काफी बड़े चिंतकों में यदि हम नाम लें, मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, विवेकानंद, मोहम्मद इकबाल, एपीजे कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन। साइंटिस्ट की यदि हम बात करें फिर सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, रामानुजम, एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट और थिंकर दोनों ही थे। एजुकेशन की मैं क्विकली कहूं, 1949 राधाकृष्णन कमीशन, 53 मुदालियर कमीशन, 68 कोठारी कमीशन, 78 ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 86 न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 91 हमारा आचार्य राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट, जिसमें कि मुझे पूर्ण आदर और विनयशीलता के साथ कहूंगा कि मुझे 2 चैप्टर लिखने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद यशपाल कमेटी रिपोर्ट, 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2009 का नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेटर्स, और लास्ट में 2020 की जो डॉक्यूमेंट आया है। यहां मैं लगे हाथ बताना चाहूंगा कि 2020 का डॉक्यूमेंट आपको मैंने बार बार कहा है कि पढ़ना चाहिए। इट्स ए वंडरफुल डॉक्यूमेंट, मुश्किल से 100 पेज का डॉक्यूमेंट है। अब मैं दूसरे हिस्से में आता हूं, इंडियन हेरिटेज क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। ये तो बैकग्राउंड थी इंडिया की। और तीसरे हिस्से में मैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम या थॉट की बताऊंगा। इंडियन हेरिटेज की हम बात करें तो दोस्तों, हमारे यहाँ
सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन गुरुकुल सिस्टम की। ये दुनिया का सबसे अनूठा गुरुकुल सिस्टम रहा है और मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगा जो हमें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसनॉमर है गुरुकुल के बारे में। 4-5 चीजें मैं गुरुकुल सिस्टम की बताऊं, हालांकि 50 चीजें हैं। गुरुकुल सिस्टम का एक ट्रेडिशन था जो आज भी इंडिया की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज फॉलो कर रही हैं, एंड दैट वाज अबाउट द गेस्ट हाउस। आज चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, जेएनयू ले लें, जामिया ले लें, एएमयू ले लें, लखनऊ ले लें, बनारस ले लें, इलाहाबाद ले लें, बड़ौदा ले लें, बॉम्बे ले लें, कलकत्ता ले लें, मद्रास ले लें, वाइस चांसलर के रेसिडेंस के एक तरफ गेस्ट हाउस मिलता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बहुत शानदार प्रोफेसर रहे थे, प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी। उन्होंने एंशिएंट इंडियन एजुकेशन पर इतनी मोटी 800,000 पेज की किताब लिखी है, विच इज रिगार्डेड एज द बेस्ट बुक ऑन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, बेस्ट बुक ऑन इंडियन। लिखे बहुत है, अल्टेकर है और भी कई है, की है, बहुत से लोग हैं, नरूलाल नायक है, पीएल रावत है, लिखी है सबने, पर राधा कुमुद मुखर्जी जैसी किसी ने नहीं लिखी। इस किताब में बड़ा साफ लिखा है, नक्शा बनाया गया है और कहा है कि वाइस चांसलर के रेसिडेंस के एक और गुरु गेस्ट हाउस रहता था और दूसरी ओर रुग्णालय रहता था, रुग्णालय, अतिथिशाला, रुग्णालय, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद हॉस्टल्स थे, हॉस्टल्स के बीच में एक टीचर। टीचर्स का सेपरेट कॉलोनी नहीं थी, बहुत से स्टूडेंट्स उनके बीच में एक टीचर, बहुत से स्टूडेंट्स उनके बीच में एक टीचर, इस तरह का कल्चर था। एक और बड़ी खास बात है, इंडियन गुरुकुल्स में 5 महा आचार्य होते थे। देयर यूज्ड टू बी 5 महा आचार्यास। महाआचार्य की एक बड़ी टिपिकल परिभाषा है और यहां मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में आज 2024 में दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी इस फीचर का मुकाबला नहीं कर पा रही। ऑक्सफोर्ड ले लें, कैम्ब्रिज ले लें, हार्वर्ड ले लें, आईवी लीग 7 ले लें, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी ताकत नहीं है कि महा आचार्य के लेवल पर आ सके। 5 महा आचार्य इंडिया में मिलते थे, एक जगह पर मिलते थे, निश्चित की हुई जगह पर, और 1 महीने के लिए कांस्टेंट डायलॉग रखते थे, रात दिन का, और दुनिया का कोई भी आदमी यहां आ सकता था और उनसे सवाल पूछ सकता था और बात कर सकता था। ए महाआचार्य इज वन who has the potential, resources and capability for boarding, lodging and education of 10,000 students for 12 years continuously. एक महाआचार्य उसे कहा जाता था जिसका गुरुकुल महागुरुकुल कहलाता था, और महागुरुकुल वो होता था जहां 10,000 छात्रों को 12 साल तक रहने, पढ़ने और खाने की सुविधाएं मौजूद थी। विद ऑल हम्बलनेस मैं कहना चाहता हूं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एमआईटी, हार्वर्ड में ये ताकत नहीं है कि 10,000 स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस 12 साल तक रख सके, खिला सके और पढ़ा सके। दूसरा एक और स्पेशल फीचर, हम लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि गुरुकुल सिस्टम वाज ए स्कूल सिस्टम, प्राइमरी सिस्टम या ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम था। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। As a matter of fact, Gurukul system was an integrated system. It was a system which included primary education, secondary education, higher secondary education, and tertiary education, college education or university education, whatever we say. It was an education system जो कि सारे सिस्टम का एक कंप्लीट 12 साल का, मिनिमम 12 साल का पैकेज था। ये एक बड़ी खास बात है। इसका प्रूफ ये है, इन सभी गुरुकुल्स में, ऑल गुरुकुल्स, they had the provision of teaching minimum 18 and maximum 25 subjects for 12 years from class 1 to 12. सभी गुरुकुल्स में पहली कक्षा से अंतिम कक्षा तक
कम से कम 18 और मैक्सिमम 25 विषय पढ़ाने का प्रावधान था। वेद, वेदांग, उपवेद, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, मृग विद्या, सर्प विद्या, चर्म विद्या, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और पता नहीं क्या क्या। इतने जो 18 से 25 विषयों को साथ पढ़ा रहा है, वो स्कूल लेवल नहीं हो सकता, प्राइमरी लेवल नहीं हो सकता, वो इंटीग्रेटेड हायर लेवल था। एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को एक और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ 12 साल की शिक्षा दी जाती थी। नो, एब्सोल्युटली नो। ये सही है, ज्यादातर गुरुकुल 12 साल की शिक्षा देते थे, लेकिन कुछ गुरुकुल ऐसे थे जो 24 साल की शिक्षा देते थे। आप गूगल में डालिए, मिल जाएगा। There were certain gurukuls which were imparting education for 36 years. And there were some gurukuls which were imparting education for 48 years. और आगे बढ़े, पढ़ने वालों के नाम थे, क्लासिफिकेशंस थे, स्कॉलर्स के नाम, परिव्राजक, नैष्ठिक ब्राह्मण, ब्रह्मवादिनी, सावित्य, प्रजापत्य, गायत्र, अलग अलग नाम है। सावित्र वो है जो नया नया पढ़ने आया, 1 साल पुराना ही है। प्रजापत्य ये है जो लगभग 12 साल के लिए, 1 साल कम से कम 1-1.5 साल पढ़ चुका है। गायत्र वो है जो 12 साल की शिक्षा पढ़ चुका है। ब्रह्मवादिनी वो है जो महिला पढ़ने आई है। There were women going to the gurukuls at all times or at all ages. नैष्ठिक ब्राह्मण वो है, ऐसे स्कॉलर्स जो कहते थे कि हम सारे साल समाज में नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई हासिल करेंगे। We will live in the gurukuls and we will have education throughout the life. So this was a very different kind of a gurukul system और ये बड़ा यूनिकनेस था। हालांकि इसमें और भी 50 फीचर्स हैं। अरण्यक संस्कृति थी, शहरों से दूर, गांवों से दूर थे, इसीलिए सोसाइटी से दूर, जंगलों के बीच में रहते थे। सेमिनार्स होती थी, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स होती थी, हफ्ते की सेमिनार, महीने भर की सेमिनार, 6-6 महीने की सेमिनार्स होती थी। शिक्षा हेतु पर्यटन होता था, एजुकेशनल टूरिज्म भी होता था, वगैरह वगैरह। आई स्टॉप हियर टेलिंग। सो दिस वाज द फर्स्ट बेसिक स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब मैं कुछ अलग विद्याएं बताता हूं, द काइंड ऑफ एजुकेशन विच वर दे वर हैविंग। दोस्तों, भारत में कुछ लोग 18 विद्याएं मानते हैं। देर आर पीपल हु सेज देर आर 14 विद्या, 14 विद्या, चतुर्दश विद्या। कुछ लोग कहते हैं कि 18 विद्या है। तो पहले हम 14 विद्याओं के बारे में जान लें। लेट अस लर्न अबाउट द 14 विद्यास, चतुर्दश विद्या, इनके बारे में जाने। फिर हम 4 विद्याओं के बारे में और जानेंगे। सबसे पहले मैं इससे भी पहले एक और के आदमी के बारे में नाम और बता दूं, थोड़ा बाद में भी दूंगा, रेफरेंस दूंगा, और आदमियों का भी नाम दूंगा। चाणक्य एक आदमी ऐसा आदमी हुआ है, बड़ा टिपिकल, जो कि हमें लेटेस्ट अवेलेबल जो उसका है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसमें 4 हिस्से हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ चाणक्य अर्थशास्त्र। चाणक्य के 3 नाम पर प्रचलित है। पहले माना जाता था कि 3 अलग अलग नाम है, बाद में पता चला कि ये एक ही आदमी के 3 नाम थे। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। These are the 3 different names of the same person. कौटिल्य नाम से उसने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्र के ग्रंथ में 4 हिस्से माने गए हैं: अन्वीक्षा, त्रयी, व्रत एंड दंड नीति। अन्वीक्षा, त्रयी, व्रत और दंड नीति। अन्वीक्षा was about contemporary science, contemporary logic, contemporary philosophy. त्रयी was about Vedic education, Vedas, 4 Vedas जिनके हम बाद में बात करेंगे। व्रत was about the education of agriculture and commerce, कृषि और वाणिज्य एक हिस्सा था। और लास्ट was दंड नीति, how to punish
the wrongdoers. Political science and public administration was part of it. चाणक्य का मैं नाम विशेष रूप से दे रहा हूं क्योंकि बाद में भी और बताऊंगा, और लोगों के भी नाम बताऊंगा। अब मैं चतुर्दश विद्याओं के नाम बता दूं। चतुर्दश विद्याओं में दोस्तों सबसे पहले 4 वेद आते हैं। देयर आर 4 वेदास, वी ऑल नो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है। एक और मैं हिस्ट्री का एविडेंस दे जाना चाहता हूं। द अर्लीस्ट रिटन फॉर्म ऑफ वेदास आर minimum 1200 years before Christ. So at least 3200 years old are the written documents available. And these are the first document of earth. दुनिया का पहली बार लिखित साहित्य ईसा से 1200 साल वर्ष पहले मिला, यानी 3200 साल पहले। लेकिन इससे पहले ये थे, श्रुति परंपरा में थे। वो एक अलग इशू है, मैं उसकी अभी और बात नहीं करूंगा। तो 4 जो वेदास थे, इनमें जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, दीज वर अबाउट द प्रेयर्स ऑफ गॉड। ईश्वर की पूजा करना, स्पिरिट, आत्मा, ईश्वर और ब्रह्म की बात करना। हाउ टू कंडक्ट द प्रेयर्स, व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रेयर, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के प्रकार, प्रार्थना के तरीके, प्रार्थना की सामग्री, प्रार्थना की विधि, उसका चिंतन, प्रार्थना का आधार, प्रार्थना क्यों की जाए, ये सब बातें 3 वेदों में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इनमें भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, कपलेट्स हैं। लेकिन सामवेद गाया जाता है। इट इज संग, इट इज नॉट, इट इज संग, गाया जाता है, गायन परंपरा है सामवेद। एक और बात, अथर्ववेद इनमें सबसे अंत में लिखा गया, सबसे ज्यादा डिटेल्ड है, सबसे ज्यादा भारी भरकम है, मोटा है। अथर्ववेद में घर में सांप घुसाए इस बारे में भी बातचीत है। बेटे का या बेटी का विवाह करने के बाद अगले दिन क्या करें, बेटे बेटी को या वर वधु को क्या करना चाहिए, ये भी डिटेल मिलेगी। खेती के प्रकार किस तरह के हैं, ये भी प्रकार मिलेगा। मतलब ये कहा गया है, वेदों के बारे में कहा जाता है कि जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो यहां है। एक और खास बात, इसका जो टाइम का बाद है, पीरियड में कहा जाता है, ये इसके रिटन एविडेंस है। एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वार ऑफ महाभारत, महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले अथर्ववेद लिखा जा चुका था। अथर्ववेद गॉट रिटन जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वार ऑफ महाभारत। एक और खास बात इन चारों वेदों की, 4 वेदों में बड़े टिपिकल स्टाइल से लिखे गए। इनमें 4 पार्ट्स हैं। एवरी वेदा हैज गॉट 4 पार्ट्स, ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता एंड उपनिषद। ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता एंड उपनिषद। कंचन जैनी और सुराया सैयद जी ने हाथ खड़ा किया है। डू यू वांट टू से समथिंग सर? सुराया सैयद जी कुछ कहना चाहते हैं, या कंचन जैन जी? आपने अनम्यूट किया है कंचन जी। जी सर बताएं। मैं सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर जी। आपने एक्चुअली हाथ खड़ा किया है, यू हैव रेज्ड द हैंड। कई बार खड़ा हो चुका है आपका हाथ, 3-4 बार। तो नो सर, कुछ कहना चाहते हैं तो बोले, वरना उसको थोड़ा कॉशियस रहेंगे। ठीक है मैडम, उसको एक बार और दबा दें, वो वापस हो जाएगा। जो हाथ खड़ा हुए का आइकन है उसको एक बार दबा दें, वो अपने आप वापस हो जाएगा। सुराया सैयद जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके फाइन। तो यहां में एक और, जैसे मैं बताया था, ब्राह्मण, अरण्यक,
संहिता और उपनिषद। उपनिषद पाठ का मंथन करके बाद के उपनिषद बने, वो इन्हीं से बने हैं। वो बाद की बात है, मैं बाद में करूंगा। तो 4 विद्या तो ये हो गई, 4 वेद 4 विद्या हो गई। इसके बाद 6 वेदांग माने गए हैं, 6 वेदांगा, द पार्ट ऑफ वेद। 6 वेदांगास वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा इज एजुकेशन, द साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन। पेडागोजी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षा। कल्प के 3 माने गए हैं, गृहस्थ कल्प, धर्म कल्प एंड सल्व कल्प, हाउ टू लीड ए गुड लाइफ। व्याकरण, द ग्रामर ऑफ संस्कृत। In fact, it is so specific. Sanskrit language is a very typical language adopted by NASA, they say. And say most of the time, if you alter the words in the sequence of the Sanskrit language, in the word, any word, you put anywhere, meaning will not change. This is so typical of Sanskrit language. Chandas, how to write poetry. Pingal Sutra and Chand Sutra. Poetry of 2 types, Pingal Sutra and Chand Sutra. How to write poetry? What are the rules of poetry? In fact, in poetry, in Hindi and Sanskrit, how many matras should be there? Dirgha matra, Laghu matra. How many words? How long length of sentences, length and breadth of sentences. निरुक्त में यक्ष कहा जाता है, etymology, the philosophy of words, etymology, शब्द मीमांसा की बात की जाती है। एंड लास्ट इज ज्योतिष। ज्योतिष मीन्स द आर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू प्रेडिक्ट, नजूमी विज्ञान कहा जाता है, उर्दू में नजूमी कहा जाता है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, these are 6 Vedangas that brings to us the total number of Vidya as 10. 10 विद्याएं हो गई। 11वीं विद्या इतिहास को माना गया है। दोस्तों, इतिहास के बारे में मैं कहूंगा, मैं यहाँ यह कह दूं, आपको फिर याद दिला दूं, आप में से वीडियो ऑन एंड ऑडियो ऑफ friends, all of you, my humble request to keep your video on. मैं नहीं चाहूंगा कि बेईमान शब्द का उपयोग आपके लिए किया जाए। वीडियो ऑन करें। इतिहास, what has happened in the past is a matter of history. It may be an immediate past, it may be a remote past. Just now I requested all of you to put your video on mode and audio on off mode. So just 1 minute ahead, 1 minute previous to this, now is a matter of history. It can be immediate past, it can be remote past. तत्कालिक भी हो सकता है, बहुत दूर का भी हो सकता है। इतिहास में हम ज्यादातर 3 चीजें पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत एंड पुराणास। पुराण सो तो 18 पुराण माने गए हैं पुराण में, लेकिन 2 पुराण प्रमुख माने गए हैं, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। विष्णु पुराण एंड भागवत, इसके अलावा और भी हैं, वराह पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण है, बट बेसिकली 2 को प्रमुख माना गया है, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। सो नाउ द लिस्ट कम्स टू 11। 4 वेद, 6 वेदांग, 1 इतिहास, 12वां धर्मशास्त्र। आचार विचार, प्रायश्चित और दंड की बात धर्मशास्त्र में की जाती है। द एथिक्स ऑफ लिविंग लाइफ। व्हाट इज धर्म? धर्म के बारे में कहा जाता है धारयते इति धर्म है। व्हाट एवर आई अटेन, व्हाट एवर आई टेक द वो टू बी लाइक। मन, वचन, कर्म, विचार, सोच, चिंतन, दृष्टिकोण, वो सब जो मैं धारण करूं, केवल वस्त्री नहीं, विचार भी, जो भी मैं धारण करूं वो मेरा धर्म है। धर्म को 4 प्रकार का माना गया है।
शाश्वत धर्म, युग धर्म, जाति धर्म एंड स्वधर्म। शाश्वत मीन्स परमानेंट धर्म, युगवत धर्म मीन्स टाइमली, अकॉर्डिंग टू टाइम जो धर्म होता है। आपद धर्म, मृत्यु आ जाए का आने वाली हो तो क्या धर्म हो, एक्सीडेंट होने वाला हो तो क्या धर्म हो। युग धर्म। जाति धर्म, द टर्म ऑफ माई प्रोफेशन, व्हाट प्रोफेशन आई एम डूइंग, टीचर का, बैंकर का, लॉयर का, पुलिसमैन का, आर्मी मैन का जो धर्म है उसको व्यवसाय से जुड़ा हुआ धर्म कहा गया है। और स्वधर्म, इसके बाद में एक अपने इंडिविजुअल लाइफ के प्रिंसिपल्स जो रखूं, दे आर माई स्वधर्म। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, कात्यायन और बाणभट्ट माना जाता है। मनुस्मृति लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, याज्ञवल्क्य स्मृति हाउ टू लिव ए गुड लाइफ, पाराशर स्मृति अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स, कात्यायन एबिलिटी ग्रुपिंग्स। आज भी सारे देश में आप लोगों ने देखा होगा सेक्शन ABC रखते हैं, ए सबसे होशियार बच्चे, बी एवरेज बच्चे, सी कमजोर बच्चे, और कमजोर बच्चों को अच्छे टीचर्स लगाते हैं, टाइम भी ज्यादा लगाते हैं। सो दैट कात्यायन ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग्स है। और लास्ट में बाणभट्ट ने बाणभट्ट ने 64 कलाओं का वर्णन किया है, जिसमें फिजिक्स का वर्णन किया है, केमिस्ट्री का वर्णन किया है, कोपरनिकस और गैलीलियो की बातें बाणभट्ट ने अपनी उसमें किताब में कही गई है। ये हो गए 12। एक दर्शन माना गया है 13वां, फिलोसफी में 6 ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल फिलोसफीज मानी गई हैं। 6 ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल फिलोसफीज, दे आर नोन एज सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। सांख्य और वैशेषिक दर्शन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, हाउ लाइफ हैज इवॉल्व्ड, दुनिया कैसे आई। सांख्य कपिल मुनि ने लिखा था, उसमें है पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, फिर मन, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये कुल मिला के 25 तत्वों की बात की गई है। योग भौतिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन से कैसे जोड़ किया जाए, उसमें आंतरिक योग और बाह्य योग होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बाह्य योग कहे जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और फिर अगले 4 आंतरिक योग माने जाते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, these are known as the 4 internal yogas. सांख्य योग, वैशेषिक में जैसे मैंने बताया, फिर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इनकी बात की गई है। गुण 24 है, कर्म 5 हैं, द्रव्य 9 है। दुनिया कैसे बनी, इवोल्यूशन कैसे हुआ, अमलगमेशन कैसे हुआ, यूनियन कैसे हुआ, शब्दों की केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे बनी, तो इनडायरेक्टली इट टॉक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ द होल वर्ल्ड। न्याय शास्त्र को एक अलग विद्या भी माना गया है। न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष में फिर लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, परोक्ष में फिर अनुमान, उपमान, भेद, इतना नहीं, बहुत गहराई में गया है। वेस्टर्न अरिस्टोटल लॉजिक 2 टर्म्स की बात करता है, 3 टर्म्स की, मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस एंड द कंक्लूजन। हमारा जो भारतीय न्याय दर्शन है वो 5 प्रमाइस की बात करता है, 5 टर्म्स की बात करता है। और भारतीय न्याय शास्त्र में अनुमान के अलावा मैं वाद विवाद की बात कहूंगा, डायलॉग के बारे में कोई दुनिया का वेस्टर्न कल्चर ऐसा नहीं कहता। इंडिया में डायलॉग के भी 4 प्रकार माने गए न्याय शास्त्र में, वाद, विवाद, जल्प एंड वितंडा, ये 4 प्रकार माने गए। सो ये हो गया सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक।
अब बचते हैं मीमांसा और वेदांत। मीमांसा के 3 नाम हैं। पहला मीमांसा, दूसरा पूर्व मीमांसा और तीसरा कर्म कांड। मेरी और आपकी दादी नानी कहते हैं पाप और पुण्य जो किया है वो करना भरना पड़ेगा, करनी भरनी, जो कर्म किए हैं उसका फल भुगतना पड़ेगा। मेरी आपकी दादी नानी इसको बहुत बढ़िया बेहतर ढंग से बता पाती है। ईश्वर, आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म, कर्म, कर्म फल, इन सब की बात मीमांसा में की गई है। 3 नाम जैसा मैंने बताया, मीमांसा, पूर्व मीमांसा और कर्मकांड। वेदांता के फिर 3 नाम हैं, वेदांत, उपनिषद और उत्तर मीमांसा। वेदांत वेदों का अंत या वेदों के बाद का जो एनालिसिस किया गया, the analysis conducted after the emergence of Vedas is Vedanta। दूसरा उत्तर मीमांसा, बाद की जो मीमांसा की गई, बाद की जो व्याख्या की गई, लेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, उत्तर मीमांसा। और लास्ट में उपनिषद, टू सिट नियर द टीचर एंड गेन नॉलेज फ्रॉम हिम। तो हर टीचर के पास गेन करने से क्या मिलेगा? तो इसमें हमारे यहाँ कुछ 108 उपनिषद माने गए हैं। कुछ उपनिषद 1-1 पेज के हैं, 1-1, 2-2 पेज के हैं। 7-8 उपनिषद तो बहुत ही 1-1, 2-2 पेज के ही हैं। प्रिंसिपल उपनिषद कुछ लोग 18 मानते हैं, कुछ लोग 12 मानते हैं, कुछ लोग 10 मानते हैं। उनमें भी कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, वास्योपनिषद, इस तरह से 10 प्रमुख या भारतीय ज्ञानपीठ ने 8 ही उपनिषद को प्रिंसिपल उपनिषद कहा है। तो ये 8, 10, 12, 18 और उसके बाद सीधे 108 उपनिषद माने गए हैं। इन सब की शिक्षा ये ऑर्थोडॉक्स दर्शन में आती है। तो दोस्तों 4 वेद, 6 वेदांग, 11वां इतिहास, 12वां धर्मशास्त्र, 13वां दर्शन, 14वां न्याय शास्त्र मैंने बताया। न्याय शास्त्र मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, इसकी बात है। तो ये 14 विद्याएं हुई, चतुर्दश विद्या कहते हैं इनको। इसके बाद 4 विद्याएं और कही जाती हैं, वो 18 विद्याएं भी आप जान लीजिए। इसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद एंड स्थापत्य वेद, 4 वेद माने गए। उपवेद माने गए। उपवेद मीन्स सब पार्ट ऑफ द वेदास। आयुर्वेद वी ऑल नो, मेडिसिन थ्रू प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन। और भी बहुत सी बातें, केवल हर्बल नहीं है, और भी कई बातें हैं, 20 से 50 बातें। धनुर्वेद द साइंस ऑफ आर्चरी, गंधर्व वेद the science and art of music and dance, vocal music, instrumental music and dance, गंधर्व वेद कहा गया है। और स्थापत्य वेद द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्डिंग। यहां मैं एक नाम और लेना चाहूंगा दोस्तों। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोल। कर्नाटक में एक महारानी हुई है पट्ट महादेवी शांतला। That lady was known as a great scholar in Indian history. She was a knower of Vedas. She was a knower of Upavedas. She was a knower of Vedangas. She was a knower of Upanishads. स्थापत्य कला, धनुर्वेद्य कला, चिकित्सा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ब्रह्म विद्या, सर्व विद्या, इन सबकी जानकार मानी जाती थी। बहुत बड़ी, हालांकि उनका पर्सनल जीवन बड़ा दुखों से भरा रहा। उस पर एक 3 वॉल्यूम की, 4 वॉल्यूम की किताब मेरे सामने यहीं रखी है, पट्ट महादेवी शांतला, उनकी लिखी हुई है। तो हमारे यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। इंडियन कल्चर में, इंडियन वेदों में, इंडियन उपनिषदों में 1-2 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों महिलाओं के नाम आए हैं who have been writers and editors of the Vedas and Upanishads. पौलमा, कात्यायनी,
बहुत नाम है, मुझे अभी याद नहीं है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी, गार्गेयी। अथर्ववेद को 20 लोग महिलाओं ने एडिट किया है। खैर, अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन नॉलेज सिस्टम की बताने जा रहा हूं, बड़ी टिपिकल है। समय कम है, मुझे बड़ा जल्दी बताना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी 4:50 नाउ। हमारे यहाँ टाइम साइक्लिक है। वेस्टर्न टाइम लीनियर है, एक दिशा में बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा। हमारे यहाँ टाइम है सतयुग, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आएगा। कहते हैं कि फिर दोबारा सतयुग आएगा और ये चेन चल पड़ेगी। हमारे यहाँ 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। राधा कुमुद मुखर्जी बड़ा साफ कहते हैं, ब्राह्मण वो है जो शिक्षा लेता है और देता है, ज्ञान लेता है और देता है, और यज्ञ करता है और कराता है। उस दृष्टि से जितने इंडिया के टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, इवन BSNL में या बैंकिंग में जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, दे आर ऑल टीचर्स। क्षत्रिय वो है जो देश और समाज की रक्षा करता है। सो दैट वे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, होम गार्ड और तो और हमारी सोसाइटी के जो चौकीदार हैं, दे आर ऑल क्षत्रियास। वैश्य वो है जो चीजों का उत्पादन करते हैं और उनका कॉमर्स, व्यापार करते हैं। किसान, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी जो कहते हैं जो वर्कर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब वैश्य हैं। शूद्र वो है जो बाकी और काम करते हैं। और यहां मैं मीनिंग बता दूं, थोड़ा गलत मीनिंग लिया जाता है। बड़ा टिपिकल एक ही एग्जांपल लूं। 12 साल पढ़ने के बाद एक व्यक्ति यदि मेडिसिन प्रैक्टिस करता है तो शूद्र कहलाएगा, लेकिन यदि मेडिसिन को पढ़ाता है तो ब्राह्मण कहलाएगा। ब्राह्मण का बच्चा शूद्र हो सकता है, शूद्र का बच्चा ब्राह्मण हो सकता है। और ये जन्मगत नहीं थी, कर्मगत थी। हमारे यहाँ 4 उद्देश्य माने गए जीवन के, गोल्स ऑफ लाइफ: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। वेस्टर्नर्स हमको आरोप लगाते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहे। नहीं, गलत है। हमारे यहाँ काम और मोक्ष, ये मटेरियल वेलफेयर की बात की जाती है, मोक्ष स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है। हमारे यहाँ 4 आश्रम माने गए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 25-25 साल के 4 माने गए हैं। ब्रह्मचर्य में ये माना गया है कि जो अपनी 11 इंद्रियों का कंट्रोल कर सके वो ब्रह्मचारी है। 11 इंद्रिय कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। गृहस्थ कौन है? जो धर्म के अनुसार जीवन यापन करे। वानप्रस्थ कौन है? जो 50 साल के बाद घर के लिए नहीं, समाज के लिए काम करे। और संन्यास के बाद हर कोई नहीं, इट वॉज ऑप्शनल। सन्यासी होना है तो आप समाज के लिए नहीं, समाज से और ऊपर उठकर हायर लेवल का रिसर्च, एडवांस रिसर्च करना चाहें तो आपका स्वागत है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां 4 धर्मों का उदय हुआ है, 4 धर्मों का विकास हुआ है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, और 5वें धर्म का विकास हुआ है। हिंदू, जैन, बुद्ध और सिखिज्म इंडिया में इवॉल्व हुए हैं, इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं। मुस्लिम धर्म इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म का विकास इंडिया में हुआ है। The greatest and the largest centers of Muslim philosophy, Islam philosophy are in India. हमारे यहाँ 6 heterodox philosophies मानी गई हैं, 4 जैन फिलोसफी ली गई हैं, 2 बुद्ध फिलोसफी ली गई हैं। बुद्ध फिलोसफी पहले एक थी, फिर बाद में 2 महायान और हीनयान बनी। सॉरी, बुद्ध फिलोसफी पहले बना महायान एंड हीनयान, यस, और उसके बाद 4 और बनी। तो उनके आधार पर सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक एंड योगाचार। 2 जैन के लिए गए, श्वेतांबर एंड दिगंबर। और मैं लास्ट में 2 ही चीज कहूंगा। ब्रिटलैंड कमेटी ने 1986 में यूएनओ ने बनाई थी अबाउट द एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें पैरा बाई पैरा ऋग्वेद और वेदों को कोट किया गया था कि दुनिया में एजुकेशन हो तो ऐसी हो। लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, इंडियन फिलोसफी यूनिक है, इंडियन साइकोलॉजी यूनिक है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉमर्स, वृक्षायुर्वेद, इंडियन मेटलर्जी, इंडियन विमान शास्त्र, इंडियन, कालिदास ने मेघदूत की बात कही है। हमारे यहाँ टिपिकल जो थिंकर्स रहे हैं उनमें मैं बात करूं,
भास्कर हैं, सुश्रुत हैं, चरक हैं, हलायुत हैं, नागार्जुन हैं, कपिल हैं, वराहमेर हैं, कणाद हैं, बाणभट्ट हैं, कल्लण हैं और विश्वेश्वरैया मॉडर्न इंजीनियर हैं। आई स्टॉप हियर डेलिबरेटली, माफी चाहता हूं मैंने समय ज्यादा ले लिया। यू आर, आई अनम्यूट, आई स्टॉप माई सेल्फ। आप अनम्यूट करें अपने आप को और जितने चाहे सवाल पूछें, आपका स्वागत है। सबसे पहले सुरैया सैयद साहब, सुरैया सैयद मैडम सवाल पूछें। सुरैया जी, ओके। रेवा दास जी, रेवा दास जी कुछ कहना चाहते हैं? शायद लगता है गलती से ही हाथ खड़ा कर दिया है। अब मैं कहूँ प्रोफेसर वीरेंद्र छाछिया जी। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, प्रणाम। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, आप ज्यादा लोग अनम्यूट करेंगे तो वॉइस इको होगी और सुनाई नहीं देगी, इसलिए एक आदमी ही एट अ टाइम अनम्यूट करें और फिर बोलें। बोले प्रोफेसर वीरेंद्र जी। सभी को प्रणाम। और मेरा सर एक ही सवाल था, जैसे मैं स्पिरिचुअल राइटिंग पढ़ता हूँ तो मैंने इस पढ़ा कहीं कि हमारे 4 वेदों के अलावा 5वां वेद भी है जिसको समवेद कहते हैं, जिसको जितने भी महापुरुष, संत, साधु, सूफी लोग आते थे और अपनी वाणी से जो बोलते थे, जैसे गुरु नानक देव आए, संत कबीर आए, संत गुरु रविदास आए, जितने भी नामदेव आए, जितने भी संत और सूफी थे, जो संत थे, वो अपने मुंह से जो बोलते थे वो समवेद था, वो परमात्मा की आवाज। तो मेरे को लगता है उस चीज से जो हमारा पुराने ऋषि मुनियों की जो स्पीच थी उनसे हमारा कनेक्शन काफी कट गया है। बहुत बढ़िया। इसके लिए एक शब्द कहा गया था, आप्त वचन। टॉप स्कॉलर्स जो हैं, जो बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग जो बोले, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट एविडेंसेस ऑफ द ट्रुथ। आप्त वचन, पके हुए वचन जो कहना चाहिए, जो अपने अनुभव से बोलेंगे। हाँ जी, कोई और साथी? तो नमस्ते सर। सुमा जी बोले। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर द सेशन सर। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो सर, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट वॉट एवर यू टोल्ड अस इनटू अ रेगुलर टीचिंग स्ट्रीम? क्योंकि वही चैलेंज है हमारे लिए कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हाउ डू आई ब्रिंग इट इनटू से माय सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, ऑल्दो अर्थशास्त्र इज देयर, बट थिंक ऑफ सम अदर सब्जेक्ट। सेकेंडली सर, जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है which is very much in depth and in detail, Western universities are able to take it, क्योंकि उनमें वो ये है कि फंडिंग आती है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। पर हमारे यहाँ where children are first generation learners, how do we convince them to take up something like this and pursue a higher education? वंडरफुल क्वेश्चन प्रोफेसर सुमा जी। मैं एक तरह से उत्तर दूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एग्जाम डेज को छोड़ दें, सदा फुल रहती है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कभी भी 10% कैपेसिटी भी नहीं भरी। मैंने अपने डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी 8 से 8 तक खुलवाई, 5 स्टूडेंट भी शाम को नहीं होते थे। वी हैव टू चेंज द कंप्लीट कल्चर। तो मैं इसके 2 उपाय बताता हूं। पहले आप एनईपी 2020 पढ़ें, दूसरा आप इंडियन स्क्रिप्चर्स एक किनारे से पढ़ें। सारे पढ़ने पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है। प्रोफेसर मैंने बताया महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ जी कविराज केवल कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे। आज दुनिया के बड़े से बड़ा स्कॉलर भी उनके बराबर में नहीं टिक सकता। मॉडर्न टाइम में ले लीजिए, फादर कामिल बुल्के रांची के कॉलेज के प्रिंसिपल थे। पिछले 50 साल में उन जैसी शानदार डिक्शनरी दूसरी बनकर नहीं आई है। वो फिजिक्स के बारे में भी जानते थे, केमिस्ट्री के बारे में भी जानते थे, मेटलर्जी के बारे में जानते थे, बट ही वाज बेसिकली टीचर ऑफ हिंदी, इंग्लिश के भी नहीं थे। तो वो कल्चर हमारे टीचर्स में जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता। मैं माफी चाहते हुए बोलूंगा। हाँ जी, कोई और साथी? फ्रेंड्स, योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज
क्या हम कहें कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है? डॉक्टर कंचन जैन जी, आपका कई बार 8-9 बार आपका हाथ उठा, अब आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। जी सर हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ बुक्स भी प्रोवाइड हो लाइक पीडीएफ में, जिससे कि हम अपने नॉलेज को थोड़ा और अच्छे से मतलब एनहेंस कर सकें कि हम कुछ मैडम और मैं सीखें। माफी चाहूंगा, जो वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। गूगल को बड़ा भाई मान लीजिए, कम से सर, कम हमें इंडियन स्क्रिप्चर्स के 1000 पीडीएफ फॉर्मेट ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सर मुझे हिंदी में नहीं मिल पाता है, और या मिलता है तो वो मैडम मैं सर माफी चाहते हुए कहूंगा, यदि मेरा वश चले, ये थोड़ा बड़ा, मैं माफी चाहते हुए बड़ा मैं क्रूर हो रहा हूँ, यदि मेरा वश चले, मैं भारत में किसी को कॉलेज लेक्चरर, यूनिवर्सिटी लेक्चरर अपॉइंट नहीं करूंगा, चाहे वो हिंदी का ही हो, यदि वो हिंदी, अंग्रेजी और एक विदेशी भाषा या कोई साउथ इंडियन भाषा नहीं जानता। यू शुड नो हिंदी, यू शुड नो फ्रेंच, यू शुड नो जर्मन, यू शुड नो स्पेनिश। जानिए, मेरी शुभकामनाएं। हिंदी में आप सोचे हर चीज मिल जाए, संभव नहीं है। नो सर। यस, आई एग्री विद यू। बड़ा वो है, लेकिन हमें अपने कोकून से बाहर आना पड़ेगा। खैर, मेरी शुभकामनाएं। लास्ट एक क्वेश्चन और ले लें साथियों, कोई और वो वीर या वीरांगनाएं देना चाहे सवाल। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन। कोई नहीं? तो मुझे लगता है प्रोफेसर वीरेंद्र जी आप ही कुछ कह दीजिए अंत में। हम मेरे ख्याल से अब गुड बाय कहें। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को, प्रणाम सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमें अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा, और हर एस्पेक्ट पे, हर लैंग्वेज में हमें पता होना चाहिए, हर चीजों को टच करके, साइंस को, आर्ट को, कॉमर्स को, या जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, हर एक परफेक्ट टीचर वही है जो स्टूडेंट की हर क्वेरी पे अपनी सटीकता से जवाब दे सके। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आप सब लोगों ने मुझे सहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। जय हिंद।